morning, student. Today we start chapter number 4, thermodynamics. Okay, so this is the fourth chapter in your physics syllabus, standard 12, lecture number 1 for this thermodynamic chapter. So in 11th standard, we explain about the thermal properties of matter. In that thermal properties, we explain what is the heat, specific heat capacity. For gases, we define two specific heat capacity, that is molar specific heat and principal specific heat capacity. But in this chapter, thermodynamics, we have to explain what is thermodynamics, what are the laws related to thermodynamics, then some process related to first law and second law of thermodynamics. It may be isothermal process, adiabatic process, isochoric process, isobaric process, and then heat engine and refrigerators and their efficiency. So these are the part of this chapter. So first explain what is the definition of this thermodynamics. Okay, so basically thermodynamics, it is the branch of physics, also branch of chemistry. देखो ये branch of physics भी होता है और chemistry में भी आपको thermodynamics है. But in physics, branch of physics that deals with the concept of, किसका स्टडी होता है यहाँ पे, concept of heat, that deals with the concept of heat and temperature. heat and temperature जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है मैकेनिकल थर्मल प्रॉपर्टीज में 11th स्टैंडर्ड. so that concept of heat and temperature and interconversion का मीनिंग heat convert into work or work convert into heat. Interconversion of heat and other forms of energy. Interconversion of heats and other forms of energy. Okay, this is the definition of thermodynamics. Thermo का मीनिंग है heat, dynamics that is related to conversion. जैसे कि हम मैकेनिक्स में मोशन कहते हैं, डायनामिक्स दैट इज इन मोशन. सो यहाँ पे भी जो होता है थर्मोडायनामिक्स, कन्वर्शन हीट का वर्क में, वर्क का हीट में, या फिर हीट का अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में. क्लियर? सो रिपीट अगेन, ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एंड इंटर कन्वर्शन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. एग्जाम्पल, जैसे कि भी हम कोई ड्रिल करते हैं, वी हैव टू पुट ड्रिल ऑन द वॉल. ओके, सपोज दिस इज अ वॉल and we put some drill machine taking some that is creating some hole inside the wall. So at that time work converted into heat. Okay, we have to create hole, that is the work done, and heat is developed in the hole, that is the conversion. Okay, interconversion of heat and work. This is the hole creating in a wall by using a drill. इसे ड्रिल हम नेचुरली ड्रिल मशीन भी कहते हैं. ड्रिल मशीन क्रिएट होल, so you have to use electrical supply and make hole using drill. So at that time work converted into heat. Clear? This is about the definition. Now first concept, what is thermal equilibrium. Thermal equilibrium, ये जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है equilibrium, that is same. Thermal means temperature, same temperature. Two body, three body, whatever may be, two body attain same temperature. Two body attain same temperature. That is the meaning of thermal equilibrium. इसका सिंपल एक्सपेरिमेंट है थर्मल इक्विलिब्रियम. देखो, दिस इज द ग्लास. इनसाइड ग्लास वी केप्ट वाटर एट रूम टेम्परेचर. ओके, ये है वाटर एट रूम टेम्परेचर. ओके, जो भी होगा उसका 30 डिग्री, 25 डिग्री. एंड नाउ वी पुट सम पीस ऑफ आइस. ये आइस का एक पीस kept inside the water. Then what happens?
दिस आइस एज लो टेम्परेचर, आइस का टेम्परेचर होगा 0 डिग्री, बराबर है 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। सो हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम वाटर टू आइस, यहाँ पे आइस क्या करेगा, वाटर से हीट एब्जॉर्ब करेगा एंड इट बिकम मेल्ट। कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद इट बिकम मेल्ट। देन टेम्परेचर ऑफ आइस एंड वाटर आर इक्वल, दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। टू बॉडी अटेन सेम टेम्परेचर and if temperature of two body are equal same, then process of exchange of heat becomes stop। ठीक है, टू बॉडी सेम टेम्परेचर में कब आता है, तो यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है, एक्सचेंज ऑफ हीट, exchange of heat between water and ice, exchange of heat between water and ice, that is the concept of थर्मल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है इक्वालिटी, सेम टेम्परेचर ऑफ टू बॉडी। रिपीट अगेन एग्जांपल, water at room temperature kept ice, after some time it become melt because they give absorb heat from the water and attain the same temperature। अब ये मिक्सचर हो गया, टोटल वाटर हो गया, तो इसका टेम्परेचर इक्वल होगा। ओके, इट मे बी 28, 27, वट एवर मे बी, but same temperature। This is the concept of thermal equilibrium, and using this concept of thermal equilibrium we have to explain the zeroth law of thermodynamics। Okay, concept zeroth law of thermodynamics। Now what is the statement of this zeroth law? इसका स्टेटमेंट क्या है, देखो अभी, zeroth law of thermodynamics। if two system बॉडी को या फिर सिस्टम को आर इच इन थर्मल इक्विलिब्रियम, आर इच इन थर्मल इक्विलिब्रियम, आर इच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम, with the third system, they are also in thermal equilibrium with each other, they are also in thermal equilibrium with each other, they are also in thermal equilibrium with each other। तो यहाँ पे देखो, कंपेयर विथ टू सिस्टम और मोर देन टू सिस्टम, इफ टू सिस्टम आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है हमें, ये सिस्टम है ए बी सी, दिस आर द थ्री सिस्टम। ओके, अब ये जो डबल हेड एरो क्या बता रहा है, देखो एक्सचेंज ऑफ हीट, ये जो है ना डबल हेड एरो रिप्रेजेंट एक्सचेंज ऑफ हीट। हीट फ्लो फ्रॉम ए टू सी and from C to A, and they attain equal temperature or same temperature। तो A and C are in thermal equilibrium। Okay, A and C are in thermal equilibrium। Again next, when there is a exchange of heat between two systems, that is A and B, then A and B are also in thermal equilibrium, then remaining B and C also exchange of heat, डबल एरो, जहाँ पे ये जो है ना ये सिंगल एरो होगा, दिस इज सिंगल एरो, यूनिडायरेक्शनल फ्लो। इसका मतलब क्या हुआ, हीट फ्लो फ्रॉम ए टू बी, सिंगल एरो के लिए, एंड डबल एरो रिप्रेजेंट हीट फ्लो फ्रॉम ए टू बी एज वेल एज फ्रॉम बी टू A to B or B to A। Clear? So here B to C is also flow of heat, then B and C are in thermal equilibrium। This is the explanation of zeroth law of thermodynamics।
repeat again. If two system AB, BC, CB, whatever may be, if two system are each in thermal equilibrium, that is same temperature, with the third system, they are also in thermal equilibrium with each other. अगर A to B एक्सचेंज हो जाएगा तो यहाँ पे A to B भी हो सकता है, तो ये सेकंड में A to B हुआ. अगर A to B हो सकता है तो रिमेनिंग क्या बचा अभी B to C. Then also exchange of heat between B and C, that is in thermal equilibrium. So A, B and C are in thermal equilibrium. Clear? So this is about the explanation of zeroth law of thermodynamics. Now, after that zeroth law of thermodynamics, we have to explain the next concept, that is heat. अभी जीरोथ लॉ का एक सिंपल एग्जांपल भी दे सकते हैं हम. हाउ द थर्मल इक्विलिब्रियम ऑकर्स. टू मेजर टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी. बराबर है. हम कोई भी बॉडी का अगर टेम्परेचर मेजर करते हैं तो उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, थर्मोमेट्री. ओके, सच ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स. ये 11th में हमने पढ़ा है. branch is a thermometry or simply science of measurement of temperature is called as thermometry. Science of measurement of temperature is a branch called thermometry. तो अब ये ऑब्जेक्ट है या फिर ये कोई भी लिक्विड है, इसका हमें टेम्परेचर मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, थर्मोमीटर. दिस इज द थर्मोमीटर. ओके, व्हेन दिस थर्मोमीटर इज केप्ट इनसाइड द लिक्विड, देन व्हाट हैपेंस, आफ्टर फ्यू सेकंड थर्मोमीटर शोज सम रीडिंग. थर्मोमीटर आपको रीडिंग शो करेगा. इट मे बी 30 डिग्री, 50 डिग्री, जो भी होगा. दैट इज द टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड. सो व्हाट हैपन, व्हेन थर्मोमीटर इज डीप, देन देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ हीट. यहाँ पे क्या हुआ है, exchange of heat between water, liquid and thermometer. जो भी लिक्विड हम मेजर करेंगे, लिक्विड ही नहीं, कौन सा भी सॉलिड ले लो, लिक्विड ले लो, गैस ले लो, उसका टेम्परेचर हमें मेजर करना है तो हीट एक्सचेंज होता है. सो हियर एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन लिक्विड एंड थर्मोमीटर. ये लिक्विड और ये थर्मोमीटर. तो यहाँ पे क्या हुआ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का एप्लीकेशन यूज हुआ. Exchange of heat between thermometer and liquid, and they show some reading 40, 50, 60 degree. That is the measurement of temperature is an example of zeroth law of thermodynamics. Okay, now what is the concept of internal energy? पहले देखेंगे हम concept of internal energy. इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी जिसका सिंबल होता है U. U इज अ सिंबल ऑफ इंटरनल एनर्जी. तो देखो अभी इंटरनल एनर्जी में सपोज दिस इज अ सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस. ओके, एनी सब्सटेंस, एंड these are the molecule of that substance. ये इस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल है. बराबर है. तो इसके अंदर जो भी टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी पजेस इन अ सब्सटेंस. सब्सटेंस को हम सिस्टम में कहेंगे, सब्सटेंस और सिस्टम. टोटल एनर्जी पजेस इन अ सब्सटेंस और सिस्टम इज अ इंटरनल एनर्जी. हो गए उसकी इंटरनल एनर्जी. दैट इज टोटल एनर्जी possessed, total energy possessed by the system. Total energy possessed by the system, due to molecular motion. अभी देखो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है दे आर फ्री है, तो उसका मोशन होगा रैंडम मोशन.
इसलिए वर्ड आया ड्यू टू मॉलिकुलर मोशन एंड मॉलिकुलर कॉन्फ़िगरेशन टोटल एनर्जी, क्योंकि मॉलिक्यूल फ्री है तो ये मूव हो जाएंगे, दिस आर द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल इन एनी डायरेक्शन, उसे रैंडम मोशन कहा जाता है। एंड ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन मीन्स पोजीशन, इसे पोजीशन भी कहा जाता है। दैट टोटल एनर्जी मॉलिक्यूलर मोशन एंड कॉन्फ़िगरेशन इज अ इंटरनल एनर्जी। ओके, इंटरनल एनर्जी। अब इसके दो टाइप है, मॉलिक्यूलर मोशन, मॉलिक्यूलर मोशन। तो मोशन तीन टाइप के होते हैं, आपको पता है। वन इज ट्रांसलेशनल मोशन, इसे लिनियर भी कहा जाता है। सेकंड इज रोटेशनल, मतलब मॉलिक्यूल रोटेशन में भी हो सकते हैं। स्ट्रेट लाइन मतलब ट्रांसलेशन, अबाउट एक्सिस रोटेट होना मतलब ये हो गया रोटेशनल, मॉलिक्यूल रोटेट अबाउट एक्सिस। मूविंग स्ट्रेट लाइन ये हो गया ट्रांसलेशन, ये हो गया रोटेशनल। एंड तीसरा है वाइब्रेशनल, थर्ड वन इज अ वाइब्रेशनल मोशन। ये तीनों मिला के जो मोशन होगा तो दैट एनर्जी पजेस इज काइनेटिक एनर्जी, उसे इंटरनल काइनेटिक एनर्जी कहेंगे हम, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा है ड्यू टू पोजीशन कॉन्फ़िगरेशन, वो है इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। सो व्हाट इज द टोटल इंटरनल एनर्जी? तो टोटल इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, दिस इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर हम आइडियल गैस को कंसिडर करेंगे और आइडियल गैस, तो आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, बिकॉज देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो भी इंटरनल एनर्जी होगी दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। टोटल इंटरनल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, उसका फार्मूला हमने थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। और वो फार्मूला है इंटरनल एनर्जी इक्वल टू 3/2 nRT। इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT। तो इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ गैस मीन्स इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द थर्मोडायनामिक सिस्टम? थर्मोडायनामिक सिस्टम, तो थर्मोडायनामिक सिस्टम जैसे कि अभी वाटर इन अ ग्लास, कोई भी लिक्विड हो या फिर गैसियस, दिस आर द वाटर और एनी लिक्विड इन अ ग्लास, वी कॉल इट इज अ सिस्टम, इसे हम सिस्टम कहेंगे। और गैस इन अ सिलेंडर, ओके, अब ये सिलेंडर है तो इसके अंदर ये जो मॉलिक्यूल होंगे गैस के, वी कॉल इट इज अ system. So define system, it is a collection, system को हम क्या कहेंगे? thermodynamic system is a collection or group of object that can form a unit which may have ability, ये important है, which may have ability to exchange energy with its surrounding, exchange energy with its surrounding, energy with its surrounding. Okay, so this is the concept of thermodynamic system. Repeat again, it is a collection or group of object को या फिर सिस्टम के मॉलिक्यूल, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो है दैट इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट और कलेक्शन
टू फॉर्म दैट कैन फॉर्म यूनिट, तो उसका एक यूनिट बन जाएगा, दैट इज अ फिक्स शेप, क्लियर, यूनिट which may have ability to exchange energy with its surrounding। तो इसकी एबिलिटी क्या हो जाएगी, देर इज अ कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विद द एटमोस्फियर, जो इन्वायरमेंट है उसे हम सराउंडिंग कहेंगे, बराबर है, तो सराउंडिंग, व्हाट इज सराउंडिंग, तो सराउंडिंग जो होता है तो इन्वायरमेंट कंडीशन, that is a surrounding, all space in universe, all space in universe, all space in universe outside the system, outside the system is called surrounding, is called surrounding। Okay, so this is the definition of surrounding, anything outside, air is a surrounding, okay, gas enclosed in a vessel is a system, और वेसल के आजू बाजू वाला जो इन्वायरमेंट आएगा वो हो जाएगा सराउंडिंग, क्लियर। नाउ टाइप्स ऑफ सिस्टम, thermodynamic system can be classified into 3 types। Thermodynamic system can be classified into 3 types। First one है A, open system, open system। अभी ओपन सिस्टम क्या होता है कि जैसे कि अभी दिस इज वाटर, अभी सिंपल एग्जांपल है, दिस इज द सिस्टम, these are the molecule of system, and there is a continuous exchange of heat, that is energy, continuous exchange of heat energy with heat energy and matter, दोनों में आ जाएगा, heat energy and matter with surrounding, with its surrounding, so that is known as open system, मतलब फ्री है। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स, तो हीट का भी एक्सचेंज हो जाएगा, तो ये जो एरो बता रहा है हम, हीट इन और आउट, हीट इन और आउट फ्रॉम द सिस्टम, इनसाइड में हो जाएगा, उसमें से हीट बाहर भी आ जाएगा, एज वेल एज मैटर, तो ये एरो है मैटर की, मैटर इन मैटर आउट, छोटे छोटे पार्टिकल मॉलिक्यूल्स, मैटर इन मैटर आउट, मैटर इन और out from the system, that is called open system। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ये जो वॉल है वेसल का, दिस इज नोन एज डायथर्मिक वॉल, इस वॉल का नाम क्या है, डायथर्मिक, मतलब नॉट इंसुलेटिंग, डायथर्मिक वॉल। तो इसमें से कंटिन्यूस एक्सचेंज होता है मैटर का, इस वॉल का नाम है डायथर्मिक वॉल, या फिर कंडक्टिंग वॉल, इसे कंडक्टिंग भी कहा जाता है, डायथर्मिक और कंडक्टिंग वॉल, हीट एंड मैटर कंटिन्यूसली एक्सचेंज। इसका एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम, वाटर बॉईल इन अ केटल, वाटर बॉईल इन अ केटल is an example of the open system, clear। now second है closed system, second name of system is a closed system। अब ये जो closed system है, इसमें क्या होता है, देखो again this is a vessel, there is a matter of the system, and here देखो closed system, अगेन वॉल जो है वो डायथर्मिक है, बराबर है, वॉल इज अगेन डायथर्मिक, बट इट एक्सचेंज ओनली हीट, it exchange only heat and no matter with its surrounding, no matter with its surrounding।
इज कॉल्ड एज क्लोज सिस्टम। तो इसे क्लोज सिस्टम कहा जाता है। एक्सचेंज ओनली हीट, हीट का एक्सचेंज हो जाएगा, हीट इन और आउट, बट नो मैटर, मैटर ऐसा जाके रिटर्न आ जाएगा। मॉलिक्यूल मूव स्ट्राइक टू द वॉल एंड रिटर्न बैक, ओनली हीट कैन एक्सचेंज, नो मैटर, दैट इज कॉल्ड एज क्लोज सिस्टम। एग्जाम्पल है क्लोज सिस्टम का, वाटर बॉयल इन बॉयलर। एग्जाम्पल, वाटर बॉयल इन अ बॉयलर is an example of the closed system. क्लियर? ये हो गया सेकंड सिस्टम। तीसरा सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम। थर्ड सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये जो सिस्टम है आइसोलेटेड, अगेन देयर इज अ वेसल, and now this vessel is made by using adiabatic valve। ये जो वाल्व होता है ये एडियाबैटिक होता है, एडियाबैटिक वाल्व। एडियाबैटिक दैट इज इंसुलेटिंग वाल्व, इसको इंसुलेटिंग भी कहा जाता है, इंसुलेटिंग वाल्व, एंड दिस इज द मैटर। ओके, अब ये इंसुलेटिंग वाल्व है तो यहाँ पे ये पूरा पिस्टन इंसुलेटिंग है। क्लियर? So there is